ایک سوال جو ہزاروں لوگ گوگل پر ڈھونڈتے ہیں لیکن کوئی کھل کر نہیں بتاتا۔ رمضان آیا اور ذہن میں آیا یہ سوال، کیا اب شوہر اور بیوی کا کیا ہوگا؟ کیا یہ مہینہ مکمل پرہیز کا ہے؟ کیا رات کو بھی منع ہے؟ اگر غلطی سے دن میں ہو گیا تو توبہ کافی ہے، یہ کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر کیا اسلام اس معاملے میں خاموش ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، اسلام نے اس موضوع پر مکمل رہنمائی دی ہے۔ قرآن میں آیت ہے، حدیث میں واضح جواب ہے، لیکن ہم شرم کی وجہ سے پوچھتے نہیں اور نہ جاننے کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ آج میں وہ سب کچھ بتاؤں گی جو ہر شادی شدہ مسلمان کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، بالکل واضح اور سیدھی زبان میں، تاکہ آپ کو بھی آسانی سے سمجھ آ سکے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات کروں گی جو رمضان میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ رمضان کیا ہے۔ دوستو، کسی چیز کا حکم سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رمضان صرف بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ غور کریں اس آیت پر، اللہ نے روزے کا مقصد بتایا، تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کا ڈر، نفس پر قابو، خواہشات کو لگام دینا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی تورات، زبور، انجیل، اس کے ماننے والے جو لوگ تھے ان پہ بھی روزے فرض تھے۔ ہم پہ ہی روزے فرض نہیں ہیں، روزے ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ تو رمضان دراصل ایک ٹریننگ ہے جسے کوئی فوجی سخت ٹریننگ سے گزرتا ہے تاکہ میدان میں مضبوط رہے، ویسے ہی مسلمان رمضان میں اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھتا ہے۔ دن بھر کھانا چھوڑتا ہے، کیوں؟ صرف اللہ کے لیے۔ پانی چھوڑتا ہے، کیوں؟ صرف اللہ کے لیے۔ جسمانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، کیوں؟ صرف اپنے اللہ کے لیے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اپنے جذبات اور خواہشات کا غلام نہیں ہے، وہ ان پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے بات کس ٹاپک پہ کرنی تھی؟ کیا رمضان میں ہم بستری جائز ہے؟ دوستو، تو اس سوال کا جواب قرآن نے خود دیا ہے اور یہ جواب اتنا واضح ہے کہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرمایا ہے، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا ہے۔ بات ختم ہوگی۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ روزے کی رات میں جانا حلال ہے، لیکن یہاں ایک لفظ پر توجہ دیں، یعنی رات۔ تو رمضان میں شوہر اور بیوی کا تعلق صرف رات کو جائز ہے، حلال ہے رات کو، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ دن کو سختی سے منع کیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر بھی بہت دلچسپ ہے۔ ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رمضان کی پوری رات بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ وہ افطار کے بعد سو جاتے، پھر سحری تک بیوی کے قریب نہ جاتے۔ بعض نے غلطی بھی کی اور بہت پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور واضح کر دیا کہ رات کو یہ تعلق بالکل جائز اور حلال ہے۔ اسی آیت میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا۔ لباس کیا کرتا ہے؟ ڈھانپتا ہے، گرماہٹ دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ رشتہ اللہ کی نظر میں کتنا قیمتی ہے، اس سے اندازہ لگائیں۔ اب ایک اہم بات یاد رکھیں، افطار کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک یہ وقت جب یہ تعلق جائز ہے۔ فجر کی اذان کے بعد روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب دن ڈلنے تک وہ چیز منع ہے جو روزہ توڑے۔ اگر دن میں غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے اور اس پر کھل کر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے دو صورتیں سمجھیں۔ پہلی صورت میں یہ ہے کہ بھول کر یا انجانے میں، اگر کوئی شخص نیند میں ہو یا بھول گیا کہ روزہ ہے یا اسے علم نہیں تھا تو فقہ کی رائے کے مطابق اس پر کفارہ نہیں، لیکن روزہ مکمل کرنا ضروری ہے اور بعد میں احتیاط کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسری صورت، جان بوجھ کر، اگر کسی نے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں یعنی دن کے وقت بیوی سے تعلق قائم کیا تو تین باتیں ہوں گی۔ ایک تو روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کی قضا بعد میں رکھنی ہوگی۔ دو، توبہ ضروری ہے، سچی دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ نمبر 3، کفارہ لازمی ہے اور یہ کفارہ بہت سخت ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے،
बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैंने रमज़ान के दिन अपनी बीवी से सोहबत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ारा बताया और ये कफ़ारा 3 मराइल में है। पहला मराइल था एक ग़ुलाम आज़ाद करो। आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ग़ुलामी ख़त्म हो चुकी है। दूसरा मराइल, लगातार 2 महीने रोज़े रखो, यानी 60 रोज़े रखने होंगे। अगर ग़ुलाम आज़ाद करना मुमकिन ना हो तो लगातार रोज़े रखने होंगे। तीसरा मराइल बताया कि 60 मस्कीनों को खाना खिलाना है, अगर 60 रोज़े रखने की ताकत ना हो तो। अब गौर करें, सिर्फ़ एक गलती का कफ़ारा 60 रोज़े या 60 मस्कीनों को खाना खिलाना। अल्लाह ने यह कफ़ारा इतना सख्त इसलिए रखा कि ताकि इंसान इस गलती से बचे। इस हदीस में आगे बताया गया है कि जब आपने पूछा कि क्या तुम्हारे पास ये सब है, तो उन्होंने कहा नहीं। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों का एक टोकरा मंगवाया और फरमाया कि ये गरीबों में बांट दो। इससे उलमा ने ये नतीजा निकाला कि अगर वाकई कोई बिल्कुल तंदुरुस्त हो तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन कोशिश ज़रूर करें। इसके बाद बात करते हैं कि क्या बार बार हम बिस्तरी ज़रूरी है। ये सवाल भी बहुत लोगों के जहन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि रमज़ान में चूँकि दिन भर नहीं हो सकता तो रात को ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये सोच बिल्कुल गलत है। इस्लाम ने कोई तादाद मुकर्रर नहीं की, न कम की हद न ज़्यादा की हद। ये मुकम्मल तौर पर मियाँ बीवी की मर्ज़ी है, सेहत और हालात पर देख सकते हैं। लेकिन एक अहम बात ज़हन में रखें, रमज़ान की रात बहुत कीमती है। इस रात में तरावी है, तहज्जुद है, कुरान की तिलावत है, दुआ का वक्त है। अगर कोई सारी रात इसी काम में गुजार दे और फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो इसने एक नाजायज़ काम करके एक फ़र्ज़ को ज़ाया कर दिया। ये समझदारी नहीं है। एतदाल हर काम में ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन काम वो है जो मियाना रवी पर हो। रमज़ान की रात को इबादत और मियाँ बीवी के हक़ दोनों में बांटें, यही समझदारी है। एतदाल क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, इस्लाम हमेशा अफरात और तफरीत से बचने का हुक्म देता है। 2 गलतियां हो सकती हैं रमज़ान में इस मामले में। पहली गलती, हद से ज़्यादा सख्ती। कुछ लोग सोचते हैं कि रमज़ान में बीवी के करीब भी नहीं जाना, ना रात को न दिन को, महीने का पूरा महीना मुकम्मल परहेज़। ये गलत है क्योंकि अल्लाह ने खुद रात को इजाज़त दी है। अल्लाह की दी हुई इजाज़त को खुद पर हराम करना सही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को ये पसंद है कि इसकी दी हुई रहमतों को कबूल किया जाए, जैसे इसे नापसंद है कि इसकी नाफरमानी की जाए। दूसरी गलती, हद से ज़्यादा आज़ादी। रात को तो इजाज़त है तो फिर सारी रात इसी में गुजार दें, नमाज नहीं, तरावी नहीं, कुरान नहीं। ये भी गलत है। रमज़ान इबादत का मौसम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में इबादत बहुत बढ़ा देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में स्पेशली इबादत बहुत बढ़ा देते थे, ख़ास तौर पर आखिरी अशरे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते थे और सारी रात इबादत करते थे। तो दरमियानी रात रास्ता अपनाएं, मियाँ बीवी के हकूक़ भी अदा करें और इबादत भी ना छोड़ें। नेक्स्ट बात करते हैं कि शौहर और बीवी के हकूक़। इस्लाम ने मियाँ बीवी दोनों के हकूक़ दिए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और औरतों के लिए भी वैसे ही हकूक़ हैं जैसे इन पर फ़राइज़ हैं, मारूफ तरीके से। इस आयत से वाज़िह है कि हकूक़ दोनों तरफ हैं। रमज़ान में भी ये बात याद रखें। शौहर को याद रखना चाहिए कि बीवी ने दिन भर खाना पकाया, बच्चों को संभाला, रोज़ा भी रखा, वो थकी हुई हो सकती है। इसकी थकावट का ख्याल रखें। बीवी को भी याद रखना चाहिए कि शौहर ने दिन भर काम किया, रोज़ा रखा, इसके जायज़ हकूक़ हैं जिन्हें बलावजह ठुकराना सही नहीं है। एक घर में मोहब्बत और अफ़वाम व तफ़हीम से ये सब मसाइल खुद हल हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जिसे अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। रमज़ान में अपने घर का माहौल खुशगवार बनाएं, एक दूसरे का ख्याल रखें। नेक्स्ट बात करते हैं कि आम गलतफहमियाँ दूर कैसे होंगी, दूर कैसे कर सकते हैं। चलिए कुछ गलतफहमियों को आज हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। रमज़ान में मुकम्मल परहेज़ ज़रूरी है, बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह ने कुरान में रात को इजाज़त दी है। गलतफहमी नंबर 2 से बात करते हैं, ज़्यादा तलक रखने से गुनाह होता है। ये बात भी गलत है। रात को ये तलक मुबाह है, गुनाह नहीं, बल्कि नीयत अच्छी रखें तो सवाब भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बीवी के साथ तलक में भी सदका है। सहाबा ने हैरान होकर पूछा, क्या जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने में भी सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हराम तरीके से करता तो गुनाह होता और हलाल तरीके से क्यों सवाब ना हो।
नंबर 3, सिर्फ औलाद की नीयत से जायज़ है, गलत। इस्लाम ने ये शर्त नहीं लगाई, मियाँ बीवी का ये रिश्ता बस ज़ात खुद हलाल और जायज़ है। नंबर 4, तलाक के बाद गुस्ल तक रोज़ा नहीं होता, ये भी गलत फहमी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में फजर करते और फिर गुस्ल करते, रोज़ा सही रहता था। तो तलाक के बाद गुस्ल ज़रूरी है, लेकिन सुबह तक रोज़ा सही है। नंबर 8, रूहानी पहलू। दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात करना चाहती हूँ। रमज़ान में दिन भर जब आप अपनी बीवी के करीब होने के बावजूद रुकते हैं सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म की वजह से, तो ये ईमान की बहुत बड़ी अलामत है। ज़रा सोचें, भूख लगी है, पानी नज़दीक है, कोई देखने वाला नहीं, फिर भी आपने नहीं पिया, क्यों? सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह देख रहा है, यही तकवा है। और जब रात को अल्लाह ने इजाज़त दी तो आपने ली, ये भी इताअत है। अल्लाह की हदूद को मानते हुए जीना, यही मोमिन की ज़िंदगी है। रमज़ान हमें यही सिखाता है, ना हद से बढ़ो, ना हद से पीछे हटो। वो अहम नसीहतें जिसका वादा किया गया था। अभी तक हमने हुक्म बात किया, हलाल हराम की बात की, अब एक दिल की बात करते हैं। रमज़ान सिर्फ हलाल हराम का हिसाब नहीं है, ये महीना अल्लाह के करीब होने का है। और सुने, अल्लाह के करीब होना आपके घर से शुरू होता है। अगर आपकी बीवी से तल्लक ठीक है, घर में मोहब्बत है, आपस में रहमत है, तो ये इबादत है। अगर लड़ाई झगड़े हैं घर में, नाचाकी है, हकूक़ अदा नहीं हो रहे, तो रमज़ान का पूरा महीना नमाज रोज़े के बावजूद बेरौनक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजी ज़िंदगी का मताला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कितने शफीक, मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले थे। रमज़ान में अपनी बीवी को वक्त दें, इसके साथ इफ्तार करें, साथ तरावी पढ़ें, अगर मुमकिन हो साथ दुआ करें और साथ रमज़ान को यादगार बनाएं। ये रिश्ता अल्लाह की नेमत है, इसकी कदर करें और याद रखें, रमज़ान की हर रात लैलतुल क़द्र भी हो सकती है। जब मियाँ बीवी दोनों मिलकर अल्लाह से दुआ करें तो वो दुआ कितनी कबूल होती है, ये अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। तो भाइयों और बहनों, आज हमने सीखा कि रमज़ान में शौहर और बीवी का तलाक रात को मुकम्मल जायज़ है, दिन को सख्ती से मना है, जानबूझकर दिन में करने पर कफ़ारा लाज़म है। बार बार की कोई शर्त नहीं, बस एतदाल ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर ये कि रमज़ान इबादत का महीना है, इसे ज़ाया ना करें। इस्लाम मुश्किल दीन नहीं है, हम लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। अल्लाह ने हमें आसानी दी है, बस हदूद का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो ये वीडियो अपने किसी दोस्त या भाई या बहन को ज़रूर शेयर करें जो इस बारे में जानना चाहती हों लेकिन पूछने में शर्माते हों। लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें इस रमज़ान की बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हमारे घरों को जन्नत का नमूना बनाए, आमीन। और हमें इन लोगों में शामिल करे जो रमज़ान को पाकर गुनाहों से पाक हो जाते हैं, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।